मुझे रिकॉर्डिंग पे लगा दिया। अच्छा, रिप्रेजेंटेशन में कि व्हेन यू टॉक अबाउट रिप्रेजेंटेशन तो उसके ना दो तीन तरीके हैं रिप्रेजेंट करने के मॉलिक्यूल्स के। फर्स्ट वन इज कॉल्ड द मॉलिक्यूलर फार्मूला। कुछ तो आपको पहले ही पता है, ये जो ऊपर आपने बनाए थे ना मॉलिक्यूल्स, द फर्स्ट वन इज मॉलिक्यूलर फार्मूला। अच्छा, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला डज नॉट गिव यू, इट जस्ट गिव्स यू द टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। So it gives you the total number of atoms of different elements in a molecule. इसके अलावा there is nothing else that is provided. No information about structure or arrangement. ये नहीं पता कि वो किस तरह एक दूसरे के साथ bonded है. So no information about structure, arrangement, angles किए हैं, bond angles किए हैं, shape किए हैं. Nothing is provided. तो one example is कि carboxylic acid है. Carboxylic acid होता है C2H4 C2H4O2. ठीक है, let's say this is carboxylic acid, this is ethanoic acid. ठीक है, अब by looking at the formula, अगर तो आपको ethanoic acid का नहीं पता ना, तो you can't really figure out कि ये how are they arranged. You know that there are two carbon atoms, there are four hydrogen atoms, there's one oxygen, but no idea how they're going to be arranged. अच्छा, फिर second पे आ जाओ. Second one, the second method of representing a molecule is known as the structural formula. और structural formula की ना different types होती हैं. Now, structural formula is it's any formula that gives you or provides you information about the structure. ठीक है, so it's a formula. Number of atoms तो वो बताता ही है, but main चीज है कि it provides information about the arrangement and the structure. ठीक है, अब इसकी अब further दो तीन types हैं. Further दो तीन types में आ जाता है कि number one is called a fully displayed. ये थोड़ा सा ख्याल रखना है क्योंकि questions के अंदर ना you'll be asked specific formulas. मतलब वो अगर कहेंगे ना कि प्रोडक्ट ड्रॉ करो, लेकिन उसका स्पेसिफिक फॉर्मूला कहेंगे कि वो ड्रॉ करो. तो fully displayed formula. तो fully displayed formulas are the ones जो आपने अभी कल जो हमने काम किया था ना उसके अंदर हमने ड्रॉ भी किए थे. Every single bond and atom is shown. But nothing is hidden when you talk about fully displayed formulas, so nothing is hidden. ठीक है, जैसा ethanoic acid है, तो वो क्या था? ethanoic acid, C double bond O और H और कार्बन के साथ 3H है, तो ये वो था C2H4O2. तो this over here is the displayed formula. एक एक बॉन्ड शो करना है, OH का भी बॉन्ड शो करना है. ठीक है, every bond has to be shown, every atom has to be shown. ठीक है, ये क्लियर है अरीबा मिनाइल? ये क्लियर है? फुली डिस्प्लेड. Yep. अच्छा, number two is known, but the same है. It's called the condensed formula. Or the condensed structural formula. To know the arrangement, you don't need to actually draw every atom. Sometimes what you could do is कि आप ना उनको ग्रुप कर सकते हो इकट्ठे. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये ऊपर वाला मॉलिक्यूल जो है ना, उसके अंदर आप कार्बन की, रिमेंबर एवरी मॉलिक्यूल इज गोइंग टू हैव अ कार्बन बैकबोन. तो आप कार्बन्स को फॉलो करना शुरू कर दो. फर्स्ट कार्बन, ठीक है, लुक एट द मॉलिक्यूल, देयर टू कार्बन एटम्स. ठीक है, सो देयर इज वन एंड देयर इज अनदर वन. तो आप क्या करोगे? आप पहले कार्बन के साथ क्या चीजें अटैच्ड हैं? देयर इज अ कार्बन विद 3 हाइड्रोजन्स. अगला जो कार्बन है उसके साथ क्या है? उसके साथ कार्बन है और फिर 2 ऑक्सीजन है और एक H है. ठीक है, सो there's CO and then there is OH. So CO and then OH.
ठीक है, so that's a condensed structure formula. वो उसी की ना condensed version है. तो आप लेकिन this formula is sufficient to figure out the structure. क्या आपको पता है कि जी ये कार्बन जो है उसके तीन हाइड्रोजन है, ये कार्बन उसके साथ एक ऑक्सीजन है और फिर एक OH है, ठीक है. सो you can get some information from the you can get the same information from the condensed formula as well. बहुत सारे molecules होंगे. For example, if I have a molecule which is like this C double bond O, बल्कि अच्छा कंडेंस फॉर्मूले में ना व्हाट यू डू इज कि कभी कभार ना वो मिक्स होता है, कुछ बॉन्ड शो किए होते हैं, कुछ नहीं शो किए होते हैं, तो दे इन बिटवीन एज वेल. यानी एक तो फुली कंडेंस्ड है ना, तो पहले तो हम इसको फुली डिस्प्ले ड्रॉ कर लेते हैं कि सो लेट्स से आई हैव अ मॉलिक्यूल और इसके साथ तीन हाइड्रोजन होंगे, ठीक है. लेट्स से आई हैव दिस मॉलिक्यूल. सो sometimes what they would show is कि ये पहला कार्बन है that's C with three hydrogens and then there's another carbon with two hydrogens. तो थोड़ा सा उन्होंने कंडेंस किया हुआ है, फिर उसके बाद ऑक्सीजन है, फिर C डबल बॉन्ड O है, फिर एक और कार्बन है विद थ्री हाइड्रोजन्स. कभी कभार वो उसको कंप्लीटली उन्होंने कंडेंस किया होगा. कंप्लीटली कंडेंस करने का मतलब है कि इट्स गोइंग टू बी everything would be written together CH3 CH2 then there is O and then there is CO and then there is CH3. तो कंडेंस कितना कंडेंस करे दैट वुड वेरी. ठीक है मेरा अरीबा, ये क्लियर है बात? Yes. तो कितना कंडेंस किया हुआ है दैट्स वो डिपेंड करता है. Achha, now the thing with the condensed formula is most of the time in your papers they'll be actually looking for this क्योंकि स्पेस इतनी नहीं होती. मतलब एथेरोइक एसिड को ना, ऑल्दो दोनों जब वो स्ट्रक्चरल फॉर्मूले की बात करते हैं ना तो दोनों एक्सेप्टेबल हैं, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट. बस मसला ये कि ये जो पहला वाला ड्रॉ करना है ना उसके लिए अगर उन्होंने सिर्फ एक छोटी सी लाइन दी हुई है एंड द मॉलिक्यूल हैज ब्रांचेस, तो आप उसको ड्रॉ कैसा करोगे? पूरा ड्रॉ कैसा करोगे? यू नीड स्पेस फॉर दैट. अच्छा कंडेंस फॉर्मूला के ना कुछ रूल्स. अच्छा क्या क्या रूल्स हैं कंडेंस्ड फॉर्मूला के कि पहला रूल तो ये कि मैं इसमें क्या कहना था, एक सेकेंड, जो इश्यूज आएंगे जस्ट गिव मी वन सेकेंड. हाँ एक रूल तो जो है वो ब्रांचेस का है कि हाउ डू यू रिप्रेजेंट ब्रांचेस. तो दैट्स द फर्स्ट रूल. ब्रांचेस कहते हैं कि जो भी चीजें साइड पे निकली होती हैं, ठीक है. सो लेट्स आई हैव अ मॉलिक्यूल जिसमें यहाँ पे ना CH3 है और फिर इधर OH है. मैं इसको थोड़ा बहुत कंडेंस भी कर रहा हूँ, ठीक है. C with three hydrogens until CH3, ये OH लगा हुआ है, फिर C and then there's another C, इसके साथ तीन H हैं, इसके साथ दो H है, इसके साथ एक और CH, लेट्स इसके साथ CH3 अटैच हुआ हुआ है. इसके साथ there's one H and then there's another CH3, ठीक है. So let's say this over here is the molecule. तो how would you condense it? आप क्या करोगे? आप बस कंडेंस फॉर्मूला का ना कोई स्पेसिफिक रूल नहीं होता, आपको किसी एक डायरेक्शन में नहीं जाना होता. आप बस लेफ्ट टू राइट चलो कि जी एक चेन पकड़ लो, उस पर देखोगे लेफ्ट टू राइट आप जाओ. तो ये 5 कार्बन एटम्स है, पहले से स्टार्ट कर लो, इस सारे को कंडेंस करके लिखना है. तो पहला क्या है? CH3 है. उसके बाद क्या है? उसके बाद C है और उस C के साथ कितने H अटैच्ड हैं? देयर इज वन H अटैच्ड और इसके साथ एक ब्रांच है, कार्बन की ब्रांच है, ठीक है. देयर इज CH3. तो ब्रांचेस को ना ब्रैकेट में डाल देते हैं, दैट इंडिकेट्स कि वो ब्रांच है. फिर अगले कार्बन पे आ जाओ. अगले कार्बन के ऊपर ना टू ब्रांचेस, एक ब्रांच नीचे निकली हुई है और एक ब्रांच ऊपर निकली हुई है.
तो अगले कार्बन पे आ जाओ, कार्बन को लिखो OH है, ब्रांच पे डालो, और फिर CH2CH3 की एक ब्रांच है, उसको अलग एक ब्रैकेट में डाल दो। तो दिस इंडिकेट्स कि वो सारे इस कार्बन के साथ कनेक्टेड है। फिर उससे आगे क्या है, उससे आगे देयर इज CH2 एंड देन देयर इज CH3. तो the rule for branches is कि branches are usually put in brackets. The branches are always in brackets. ठीक है? मिनाइल ये क्लियर है? जी। अच्छा, एक ये याद रखना है। और फिर है कि और छोटे मोटे रूल्स जहाँ में कंफ्यूजन हो सकती है, ठीक है, कंडेंस करते हुए। सो सम रूल्स फॉर, अच्छा सम रूल्स फॉर ये, एक सेकंड, अच्छा now some rules for functional groups. Functional groups हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन कुछ functional groups को के रूल्स देख लो कि उनमें आप क्या करोगे। And those rules are, अच्छा rules for just give me 1 minute, एक मिनट। अच्छा चलिए, बस ये मेरी यहाँ पे लाइट गई है काफी देर से, तो माय डिवाइसेस आर नॉट चार्ज्ड। चलिए अभी जब तक काम चल रहा है चलाते रहते हैं। अच्छा रूल्स फॉर फंक्शनल ग्रुप्स के, ये थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा उसका ओ लेवल से। एक तो याद रखना कि कार्बोक्सिलिक एसिड सी डबल बॉन्ड O OH, इसको कंडेंस फॉर्म में किस लिखते हैं, इसको कंडेंस फॉर्म में लिखते हैं COOH कर देते हैं, ठीक है। इसका ये ख्याल रखना कि हमेशा इसका ये ख्याल रखना कि अगर ये ऑपोजिट साइड पे हो, तो what do you do when it's on the opposite side? For example, there's a molecule जिसमें there is carbon atom. चलिए ये मॉलिक्यूल कर लेते हैं, और मैं सारा उसका ना एक डिस्प्लेड फुली डिस्प्लेड फॉर्मूला ड्रॉ करता हूँ, और ये कार्बन है उसके साथ ना 3 H लगे हुए हैं, फिर यहाँ पे H है और यहाँ पे डबल बॉन्ड O है और OH है। अच्छा ना दिस इज अ फुली डिस्प्लेड फॉर्मूला। हमेशा याद रखना कि आपने ना कोई भी डायरेक्शन पकड़ो, बस उस पर चलना शुरू कर दो लेफ्ट टू राइट। तो द कार्बन ऑन द लेफ्ट 1 2 और 3 उसी डायरेक्शन में ड्रॉ करना है कंडेंस करके। COOH है तो इसको उल्टा करके ड्रॉ करना है। दिस इज COOH। इसको आप फर्दर कंडेंस कर सकते हो, इसको आप लिख सकते हो, a lot of times it's written as CO2H, पर वो दो ऑप्शंस को ना आप इकट्ठा भी कर सकते हो, ठीक है। सो दैट कुड आल्सो बी डन। तो COH, उसके बाद क्या है, उसके बाद देयर इज द सेकंड C के साथ क्या है, H है, और ब्रांच उसी C के साथ ना एक ब्रांच अटैच्ड है, वो किसकी अटैच्ड है, CH3 की। फिर उससे आगे क्या है, COOH। तो ये इस मॉलिक्यूल का ना कंडेंस वर्जन है, ठीक है। ये क्लियर है अरीबा मिनाइल, ये क्लियर है? जी। अच्छा Yes. तो एक दो और फंक्शनल ग्रुप्स अल्कोहल्स हैं। तो अच्छा अल्कोहल्स में कि व्हेन यू डीलिंग विद अल्कोहल्स का तो कोई इशू नहीं है, ठीक है, वो आप लोगों को पहले ही पता है कि
ROH जो है ना that's written as ROH, ठीक है। इसमें भी ना एक चीज का ख्याल रखना है कि अगर तो फंक्शन मतलब फंक्शन ग्रुप राइट पे या लेफ्ट पे है तो उसके हिसाब से लिखना है। मतलब बहुत सारे लोग बताओ क्या करते हैं कि लेट्स से मॉलिक्यूल है OH राइट पे लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे उन्होंने सही लिखा हुआ है, मतलब कॉमन मिस्टेक्स बता रहा हूँ। लेकिन यही मॉलिक्यूल, अच्छा रिमेंबर कि मॉलिक्यूल्स को ना उल्टा करके भी ड्रॉ कर सकते हैं, इट डजंट मेक अ डिफरेंस। अच्छा यही मॉलिक्यूल अगर ना OH साइड पे लिखा हुआ है तो आपने ना रिमेंबर दिस कि OH का जो ग्रुप है ना उसमें O जो होता है ना दैट्स द H इज द टर्मिनल एटम। H एक बॉन्ड बनाता है, उसका मतलब है कि इट्स ऑलवेज एट द एंड, वो हमेशा बाय वाली साइड पे होगा। O जो होगा वो अदर वाली साइड पे होगा। तो बहुत से लोग गलती ये करते हैं जब इस तरह लिखते होते हैं ना जल्दी में, तो वो इसको ना उन्हें आदत पड़ी होती है OH लिखने की, सो दे जस्ट राइट OH, जो ऑब्वियसली गलत है, ठीक है। तो इस चीज का ख्याल रखना है स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हुए कि अगर वही फंक्शनल ग्रुप लेफ्ट साइड पे कंडेंस करके लिख रहे हो तो जस्ट मेक श्योर कि उसको उल्टा कर दो, ठीक है। अच्छा देन देयर इज गोइंग टू बी अनदर फंक्शनल ग्रुप which you're going to study, and that is an aldehyde. तो अच्छा aldehydes में क्या होगा? Aldehydes में होगा कि aldehydes are like this, कि अभी हम सारे फंक्शनल ग्रुप बारी बारी पढ़ेंगे, वो उसकी फिक्र ना करो। Aldehyde is this thing, it's this functional group, serial bond ONH। अब इसको भी अगर आप कंडेंस करो ना तो ये क्या बनता है, R और फिर C और फिर O और H लगे हुए हैं ना। अब मसला अगर मैं इसको OH लिखता हूँ तो वो लगता है कि वो अल्कोहल है, जबकि इसमें और उसमें बड़ा फर्क है, ठीक है। मतलब वो भी OH है, ये भी C के साथ O और H लगे हुए हैं, ठीक है। तो जस्ट टू डिफरेंशिएट रिमेंबर दिस कि aldehydes आर इंस्टेड रिटन एज CHO, ठीक है। तो अल्कोहल्स OH होते हैं, तो aldehydes आर रिटन एज CHO। ये क्लियर है मिनाइल, रीबा, ये क्लियर है बात?